फाइनल ईयर का बच्चे से प्रोजेक्ट नहीं कर पाता तो क्या करेगा. सो वी वेंट टू द मार्केट एंड वी थॉट कि हम किसी और को दे देते प्रोजेक्ट बनाने के लिए. But so as a student we cannot also afford the fees. So it was decided between us that कि हम प्रोजेक्ट खुद से बनाते हैं. 1 month में मेरा नॉलेज ऐसा हो गया कि आई क्रिएटेड 3 different versions of my project, and I gained so much information and knowledge with respect to deep learning. I also helped to make projects for other students as well. So when you meant placement, as in raw engineering happened through that placement, or like how was the placement journey like? I had the knowledge of creating softwares and APIs and everything, but there were still like इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स थोड़े होते हैं जो फॉलो करना पड़ता है. एंड आप कॉलेज में कितना भी रह के सीख लो, आप सिर्फ कोडिंग करना सीख पाओगे, आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स कभी नहीं सीख पाओगे. सो स्टूडेंट्स शुड नॉट एंटायरली डिपेंड ऑन कॉलेज. ये एक बहाना होता है. मतलब ये तो बचपन से सीखा हम लोग ने कि, एंड ये ट्रू भी है कि बचपन में ऐसा होता भी था कि एक मैथ्स का एक कंसेप्ट स्किप कर दिया टीचर ने तो बच्चे लोग के पास बहाना होता था कि मैं टीचर ने नहीं पढ़ाया, नहीं आता. एंड वो कुछ हद तक चलता भी है बिकॉज आप उतने सारे कंसेप्ट्स के साथ आप डील नहीं कर रहे हो. देयर इज नॉट लॉट ऑफ डिपेंडेंसीज बिटवीन द सब्जेक्ट्स. ठीक है, वो बहाना अभी भी कंटिन्यू करते बच्चे विद व्हेन दे गेट इनटू ग्रेजुएशन एंड एवरीथिंग कि ये कंसेप्ट नहीं पता है, अब ये चीज़ नहीं पता है, ये नहीं पता है तो नहीं किया. दिस इज रियली रॉन्ग. आप ऐसा नहीं कर सकते हो. Hi everyone, and welcome to another episode of Socho and Seco Saga. We will dive into the world of education, design, technology, and all the people they are doing great work in our region, Vasai Virar, and overall Palghar district. Today we have a very special guest. I'm very excited to introduce you to Mr. Tarun Singh, a young and dynamic software developer and working with raw engineering. And Tarun is not just about coding, he's also giving and sharing his knowledge and his tech expertise to the next generation. Welcome, Tarun. Welcome to the show. Yeah, thank you so much, Shitija, for having me here. Hey guys, Tarun this side. So by profession, I am a software development engineer, and I'm also an educator. So for the details, I work on OneStack technology, and as well as I work on Kotlin sometimes. And in my free time, I do teach to my students. So that's a bit about me. So Tarun, how was Tarun as a kid? Like, how was growing up in Virar? You have done your schooling in Virar. So how was that experience? How was Tarun as a kid? So, about the Tarun as a kid, so in my childhood, I was like bit of tech fanatic, and I was into during I was into cartoon and I was into technological things, right? So I used to have a remote control car and all those things to break it and make it something out of it, having a motors and everything. So yeah, I had that kira of technology since from the beginning, and also I was in lot of into cartoons and those things. So that's it. But yes, about apart from that, I was also a silent kid, not used to talk that much, kind of introvert guy. Yeah. So from very childhood, like you decided कि engineering करना ही है या whether there were like other career options? So yeah, from childhood, I actually like sealed the decision that I was going to be an engineer. It was like that. So it was from like from my parents, and it was up to me as well that I perceived engineering as a suitable field for me. Okay, so as I said, I had that kid of technology. So so I used to think I want to become electrical engineer. That was my what say perception of that time. So because I was doing this motor लगा के इधर लगा दिए ये light वो wiring ये सब मेरा चलता था तभी. So yeah, but that is damn sure that कि मुझे engineer बनना था.
So schooling आपने विरार में किया है, but I know that you went to Wilson College for your I think 11th and 12th. Yes. So how that happened? I mean, how is that decision came? It's very difficult for Okay. generally like when you're staying in Virar, people don't like to travel for junior college. Okay. So I think this happened subconsciously. It was not like कि मुझे विल्सन कॉलेज जाना है या उतना दूर ट्रैवल करना है. So why did that happen? So as I said, I was an introvert guy, and but during my 8th, 9th, and 10th standard, I did went from certain transformation. Like I was into science and technology, as I said, but then फिर मैं सोचा कि that is enough. I thought at that time I have acquired a suitable knowledge. Now I should get out of my cocoon. Like I should become somewhat out of from the introvert's scope, right? So वो मेरा एक thought process तभी चल रहा था. तो so I was not very talking much. तभी भी मैं हिंदी में बात करता था, इंग्लिश वेरी कंफर्टेबल नहीं थी. सो दैट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई वाज थिंकिंग, एंड सर्टेनली ऐसा इंडिया में ऐसा होता है कि वी थिंक दैट कि तुम अपने देश से बाहर निकलो, अपने घर से बाहर निकलोगे तो तुमको दुनिया समझ में आएगी, देन यू विल बिकम स्मार्ट. Which is for that reason I thought कि Wilson College that is in Charni Road, Virar and Charni has a lot of distance. Okay, so I thought कि वहाँ जाऊँगा, वहाँ अलग तरीके के लोग मिलेंगे. Then I thought कि वो मेरे को थोड़ा help कर सकता है in terms of my personal development, not in terms of studies, because studies का ठीक था कि मैं कर लूँगा, ये है वो है, ठीक है, वो सब तो अपने track पे थे. But apart from that कि just for personality development sake, that is the only reason I think of. तब मैं मेरा ऐसा सबकॉन्शियसली डिसाइड हो गया कि वहाँ पे जाना. Okay, and like once the 12th was done, how like you entered to Vartak College, how that happened? Yeah, so now that is really opposite of what happened from 10 to 12th, and now this is totally opposite. So I did really bad in studies in the 12th. Okay, I just got certain qualifying marks. Okay, that's it. But फिर so अपने जेई एंड एमएचसीटी दो एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल पे कि इंजीनियरिंग करना है तो ये दोनों एग्जाम्स में से कोई तो एग्जाम में क्रैक करना पड़ता है. सो जेई के लिए जिस तरीके से मैं प्रिपरेशन कर रहा था मुझे नहीं लगता था कि मेरा कुछ होने वाला है. सो या आई वन दो पीपल से दैट कि मैं स्टडीज में कुछ एकदम स्टूडियस टाइप का हूँ, बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, बट दैट इज नॉट ट्रू. आई कंज्यूम नॉलेज बट आई डोंट स्टडी. दैट्स व्हाट द डिफरेंस विथ मी इज. ओके, सो तो जेई नहीं क्रैक हुआ तो एक साल ड्रॉप लेके मतलब आफ्टर 12th आई टुक अ ब्रेक एंड प्रिपेयर्ड फॉर एमएचसीटी. सो उसमें भी उतना नहीं अचीव कर पाया, बट देन सर्टेन स्कोर मिला जिसके हिसाब से मेरे बकेट में वर्धा कॉलेज बैठ रहा था. सो आई पिक अप दैट एंड वहाँ से मेरी इंजीनियरिंग की जर्नी चालू हुई. आपने एक बहुत अच्छी लाइन बोली कि आपको समझ में सब आ रहा था, बट यू आर नॉट एक्चुअली डूइंग इट. सो डू यू फील लाइक देयर इज एनी लाइक कॉमन रिलेशन विद रणछोड़ दास when you Yeah. think about Three Idiots and Yeah, so the way Ranchhod Das was depicted in so is based on Kunsuk Bamru, which is who is an actual scientist, right? So I won't be saying that कि मैं उसके जैसा हूँ, but yeah, means नहीं पढ़ने में नहीं मन लगता था, but yeah, दिन भर बैठ के डिस्कवरी देखना और एनसाइक्लोपीडिया पढ़ना और साइंस कंज्यूम करना, ये सब में ज्यादा मजा आता था. एंड देन समवट जितना एक्सेसिबल रहता था हाथ में वो चीजें मैं एक्सपेरिमेंट करता था. yeah, so I'm trying to get some knowledge on this and trying to know you better and some characteristics and behavioral patterns so that even our viewers, whoever, whether there are parents and students who are listening to this, they understand that otherwise we label people a lot. We Yeah. try to put some kind of a label, ये पढ़ाकू है, ये नहीं करता, ये ऐसे नहीं करता. But in the end, every path and journey is going to take you somewhere to Correct. that vision and direction, right? So, in your engineering journey, what were the highs and lows that you remember that you would like to share with our viewers? Okay, so the very common law is that you have to score to get pass in engineering. So वो so yeah, तो engineering की studies people often underestimate that. So you 2 दिन पहले पढ़ के पास हो जाओगे, that is true, that is not true as well, because to attend an exam and you will say that कि आप 2 दिन में पढ़ लोगे, तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे precursors होने चाहिए, बहुत सारे prerequisites आपके ऑलरेडी मतलब सेटल्ड होने चाहिए. सो हाँ, तो 2 दिन में वही लोग पढ़ पाते हैं जिनका कुछ ऑलरेडी रहता है बेसिक्स.
ओके, सो वो भी एक है, बट लोस तो यही थे कि ऑफन टाइम्स वी वर स्ट्रगलिंग विद टू गेट सम स्टेबल स्कोर्स. So, talking about another low in my engineering journey was that doing my final year project. So in the final year, we represented certain topics that was to be selected by the panel. पर उसमें हम लोग ने 20 to 25 टॉपिक्स रिप्रेजेंट किए थे, मेरे और मेरे ग्रुप ने. तो जिसमें से मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स सब ने रिजेक्ट ही कर दिया था, बट द फाइनल टॉपिक विच वाज सिलेक्टेड वाज इमेज प्रोसेसिंग, बेस्ड ऑन इमेज प्रोसेसिंग. सो उसमें ऐसा हुआ कि हम में से तो किसी को आता नहीं था इमेज प्रोसेसिंग. वी वर जस्ट कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ मनस्टैक एंड डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग. जस्ट नॉलेज था कि हाँ ये चीज़ है बस. बाकी मतलब ज़्यादा डिटेल में आइडिया नहीं था. तो हम लोग ने चालू किया, फिर प्रोजेक्ट बनाना, थोड़े बहुत प्रेजेंटेशंस वगैरह दिए. सो बट द पैनल वाज नॉट हैप्पी एंड हमारे लिए भी स्ट्रगल हो रहा था बिकॉज इट वाज अ न्यू डोमेन फॉर अस एज वेल. सो व्हाट वी डिड, सो फाइनली मतलब एक फाइनल ईयर के बच्चे से प्रोजेक्ट नहीं कर पाता तो क्या करेगा. सो वी वेंट टू द मार्केट एंड वी थॉट कि हम किसी और को दे देते प्रोजेक्ट बनाने के लिए. बट सो एज अ स्टूडेंट वी कैन नॉट ऑल्सो अफोर्ड द फीस. सो इट वॉज डिसाइडेड बिटवीन अस दैट कि हम प्रोजेक्ट खुद से बनाते हैं. एंड सो व्हाट आई डिड कि मैं जस्ट 1 मंथ के लिए सिर्फ पूरा रिसर्च मोड में चला गया with respect to image processing and deep learning. So in that journey, I did all the possible coding learnings and whatever the experiments were possible with respect to image processing and deep learning. So उस 1 मंथ में मेरा नॉलेज ऐसा हो गया कि I created 3 different versions of my project. And I gained so much information and knowledge with respect to deep learning. I also helped to make projects for other students as well. So मतलब वो जर्नी ऐसी हो गई कि I was not able to create my project. मार्केट में गया, but then I went like I came back and वो मैंने प्रोजेक्ट खुद से बनाया and then I helped others as well. So it's a combination of low as well as high. So that's a high. That's the biggest high for me in my entire engineering journey में. And second high was getting placements. So it was I never thought कि मुझे placement मिलेगा. मेरे को मैं कभी सोचा भी नहीं था. Then luckily I got it's not luck, but yeah, definitely I would say कि थोड़ा luck का contribution होता है, but otherwise it was lots of hard work which we did in final year and in the previous years as well. So all that effort finally resulted into that final year project getting rock solid and then getting placements. Okay, But so but finally, even with the project which I represented, panel was not happy. So that is that. so when you meant placement, as in raw engineering happened through that placement, or like how was the placement journey like? So different. So there were a lot of companies coming to college, and you have different expectations from all the companies. Some demand some sort of test, some demands some sort of interview, and the combination of both also exists. So so for me it was having a test as well, and it was like they asked me to do a project which was like a bit was it was like आपको तो बेसिक्स करना है ये प्रोजेक्ट में, बट आपको इससे थोड़ा एक ज़्यादा स्टेप भी करके दिखाना था उस प्रोजेक्ट में. सो आई वॉन्ट गेट इनटू मच डिटेल्स, बट देन आई ऑल्सो डिड दैट एंड देन इट वाज लाइक कि हाँ मुझे है नॉलेज. सो इट वाज लाइक मेरा प्रूफ हो गया कि आई एम एबल टू कोड एंड आई एम एबल टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर. सो बट तो वो जो मेरा था एंट्री एंड देन आई गेट इनटू इंडस्ट्री, इट वाज टोटली डिफरेंट. बट आई वाज नॉट लाइक कि मुझे बेसिक से झेलना पड़ रहा है. मेरे बेसिक्स ऑलरेडी डन थे, तो आई वाज लाइक कि हाँ ये करना तो ये करते हैं. दो एज अ फ्रेशर जब आप पहली बार जॉब करते हैं आपके साथ स्ट्रगल बहुत सारे होते हैं. 6 मंथ्स आप एक हसल ही कर रहे हो, कंटिन्यू 6 मंथ्स आपका एक हसल होता है. सो मेरे साथ ये हो रहा था कि दो आई हैड द नॉलेज ऑफ क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर एंड APIs एंड एवरीथिंग, बट देयर वर स्टिल लाइक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स थोड़े होते हैं जो फॉलो करना पड़ता है. एंड आप कॉलेज में कितना भी रह के सीख लो, आप सिर्फ कोडिंग करना सीख पाओगे, आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स कभी नहीं सीख पाते. सो वहाँ पे मेरा स्ट्रगल हो रहा था, बट देन आई मैनेज्ड इट एंड वो भी हो गया मेरा. Okay. So at the age of like 26, so young, and how do you feel when
like young students call you like Tarun sir, and how that journey happened, like how Tarun became Tarun sir. Okay, first of all, why people call me sir is because I teach certain students, and those students call me sir. So, and sometimes, so those are my juniors and those are my students. So they call me sir. I, since I'm coming from certain industrial background, it is not appreciated to say sir or to call someone by sir. It is like a friendly behavior which we maintain. नाम से बुलाते हैं लोगों को. But then in our like एजुकेशन सिस्टम इट्स फ्रॉम द बिगिनिंग दैट कि मैडम सर बोलना पड़ता है या बोला जाता है. सो वो एक चीज़ है. दो इट फील्स गुड बट आई एट द सेम टाइम डोंट अप्रिशिएट. बट देन मैं सबको ये समझाते नहीं बैठूंगा कि मुझे सर मत बोलो. इट्स लाइक जो चल रहा है चलने दो. एंड एक सरप्राइजिंगली एक बात बताता हूँ. दो मैं यहाँ पे थोड़ा इस चीज़ को रजिस्ट कर रहा हूँ. बट कभी कभी रेट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस या फिर रिहेटोरिकल क्वेश्चंस पूछते हैं स्टूडेंट्स को. देन मैं बोलता हूँ कि हाँ सर बोलेंगे ऐसा करना तो कैसे करोगे, तो मेरे मुंह से भी निकल जाता है. सो दैट इज देयर. बट हाँ इट्स फील्स गुड बिकॉज आई नेवर थॉट. सो जॉब करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी है, तो ये मैंने सोचा था. बट नेवर थॉट कि मैं ऐसा मुझे कुछ रिस्पेक्ट मिलेगा. भले इट्स नॉट लाइक वेरी इन ह्यूज अमाउंट और वट एवर दैट, बट एक सर्टेन लेवल पे मुझे भी थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट यहाँ पे देखने मिला था. दैट फील्स गुड. So when I meant sir and all these things, what I really wanted to understand is uh, teaching someone. It takes something else, right? I mean, everyone working in the industry is a knowledgeable person. सबको पता होता है क्या करना है, कैसे करना है. पर सिखाना, it takes something else to become a teacher. So आपको कैसे लगा कि मैं ये try करता हूँ, like, and what was your first educational gig? तो बिफोर दैट आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन कि मैं टीचिंग क्यों करता हूँ. एंड सो देयर आर टू रीजंस फॉर दिस. इट्स लाइक कि आई हैड दैट नैक फॉर एक्सप्लेनेशन. पता नहीं बचपन से. सो मैं मॉम के साथ बचपन में कन्वर्सेशंस होते थे, मैं मॉम को एक्सप्लेन करता था. एंड काफ़ी कुछ नॉलेज मैंने सीखा है मम्मी को, मैंने शेयर भी किया है. तो वो एक था. एंड जब मैं कॉलेज और इंजीनियरिंग में आया तो इट वाज लाइक कि मैं फ्रेंड्स को पकड़ के सिखाता था. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये थे और फ्रेंड्स मुझे भी सिखाते. इट वॉज टू वे कम्युनिकेशन. बट वो चीज़ करने में मैं इंजॉय करता था कि हाँ भाई अब मैंने प्रोजेक्ट किया तो मैं लोगों को एक्सप्लेन करने में मुझे बहुत अच्छा लगता था. सो इन दैट सेंस आई थॉट कि अब मैंने थोड़ा नॉलेज गेन कर लिया. ओके, सो व्हाई नॉट आई शुड स्टार्ट शेयरिंग विद अदर्स. ओके, जूनियर्स थे, पूछते थे कि सर मतलब तरुण भाई कैसे करें ये वगैरह चीज़ें पूछते थे वो लोग. सो तो वहाँ से मेरा टीचिंग का जर्नी चालू हुआ. तो फर्स्ट एजुकेशनल गिग वाज दैट कि मैं फ्री में सिखाता था. आई यूज्ड टू टॉट माय जूनियर्स इन द कॉलेज ऑनलाइन. मतलब शायद मैंने अब्रप्टली कभी क्लोज भी कर दिया हो उस चीज़ को, बट मैंने कंटिन्यूसली 6 to 10 सेशंस लिए थे मैंने. एंड वो मेरा फर्स्ट क्विक था. एंड इट वाज लाइक कि करना है बस. इट वाज नॉट लाइक कि पैसे कमाने हैं या कुछ ऐसा कुछ तो नहीं करना था मुझे. द सेकेंड रीज़न व्हाई आई started teaching was that so if you see like great people in this world, आप देखोगे वो कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे हैं एक सम सॉर्ट ऑफ मैनर में अपने सोसाइटी को. एंड आई थिंक आई एम नॉट दैट कैपेबल टू गिव समथिंग इन रिटर्न. बट देन आई थॉट कि एक शायद किसी का करियर बन जाए या फिर किसी को कुछ मैं ऐड कर दूँ तो उसका थोड़ा आगे अच्छा हो जाएगा. तो ये सोच के मुझे वो थोड़ा एक गुड फील आता है कि इसलिए मैं करता हूँ. I think we are on the same page. I mean, that is how we also started working with Edba Academy, and the give back factor, which was the common factor which got us all the core team together as well. That's great. And any teacher or mentor in your life that you want to mention, right from engineering to your school or any other college, like sometimes there are few teachers जो एक impact छोड़ के जाते हैं. Yes. Something like that. you Few would like to few share? names I can recall. So yes. So in the engineering, I decided that I wanted to do masters. So I started preparing for GATE exams, even though I never qualified that as well. So yeah. So but
For that gate preparation, I bought one course that is from one of the academies from the south named as Ravindra Babu Ravula. वो उनके नाम पे ही वो classes based है, and he is quite popular for masters and gate examinations. So with his educational videos and with his informational type of videos, I have a huge respect for him. Even though there are different times right now, he's like not I'm not sure like how he's associated right now with the education, but during that time he was really great. And I really like I imagined him like कि कभी कुछ तो इसके जैसा कर सकते हैं हम लोग. So because he was also doing the same thing, even though he was taking fees, but जो वो जिस तरीके का वो प्रिपरेशन करवाते थे, जो उनका फंडामेंटल चल रहा था फॉर दिस एंटायर गेट प्रिपरेशन का आर्किटेक्चर, जो उनके क्लासेस में जो चलता था, उसके पीछे जो लोग हायर करते थे ना, दे यूज्ड टू कॉस्ट हिम लॉट, बट स्टिल ही मेंटेन दैट फ्लो. एंड वो बोलता था कि मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, एंड इट्स लाइक कि मैं मुझे बस करना है. एंड इन दैट सेम, एंड ही इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर डेवलपर बिकॉज ओरेकल वगैरह में उन्होंने जॉब किया था. एंड ही इज फ्रॉम IISc बैंगलोर, so it's one of the top science institute, like compared with I think even it is ahead of IITs as well. So one of the institutes in India which we have. So yeah, so I really admire him, and I don't know exactly the state like how he is right now, but yeah, that was the one person I would like to mention. Okay. And in terms of your teaching experience, where you felt that I also added something to someone's life, like any, I mean, I know it's too early. It's been few years only, but where you actually felt that अच्छा कर रहा है, मैं जो भी कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, या you had some impact कि मेरी teaching की वजह से कुछ अच्छा हो रहा है. Any experience? So yeah, so there are two types of impact. One is like कि देखो इंसान लाइफ में कोई कुछ क्यों कर रहा है, एट द एंड जॉब करने के लिए एंड पैसा कमाने के लिए, बिकॉज दैट इज द फंडामेंटल्स एंड बेसिक व्हाट्स ए रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ. ओके, so getting a job like by my student is one of the like impact, and another impact is like कि उसके पर्सपेक्टिव थोड़ा और चेंज हो गया या मेच्योर हो गया, सोचने का नजरिया बदल गया, वेदर इट इज टेक्निकल और वेदर इट इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ, दैट डजंट मैटर. बट हाँ, जब पहले कैसे कन्वर्सेशन करते थे एंड देन अभी कैसे कर रहे हैं, सो देर इज अ लॉजिकल डिफरेंस विद देम कि हाँ, मैं मोस्टली टेक्निकल टीचिंग कर रहा हूँ तो मैं टेक्निकल चीज़ों में वो चीज़ नोटिस करूँगा. तो वो एक इम्पैक्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा है कि जो मैंने सीखा है वो लोगों ने कंज्यूम किया, वो मुझे लाइक बता पा रहे हैं. एंड दूसरा चीज़ ये है कि few of my students got the job, so that is one also good thing which did the impact. And also it must have been a little tough balancing your time, like having a full-time job, also you teach beyond the hours of your working hours, like a regular working as a software developer. So how do you cope up with that? How do you manage all that? So with respect to time management, yeah, as I said, I do teaching only in my free time, otherwise it is really difficult to manage. And so yeah, so maybe certain times it is not possible that I am not able to give full time or a commitment to my students, but yeah, those are the hiccups which we have to tackle. And so I don't think it is challenging with respect to time, but it never occurs in my mind कि नहीं हो पा रहा है, some way some other way हो जाता है. Okay. Okay, and in educational ecosystem, if you see, what do you feel that certain things or systems can be placed, or even in terms of systems or students as well, like any advice on that? So there is whole lot of things, and I think this is a common question across all the people who are related with educational sector. I think some way or some other people wants to change certain things with the education system. It's not just about me. So what happens? So it depends what kind of course we are doing. So for me, engineering. So I think one of the things which I feel was lacking exposure. So having industrial people in the college and talking with them and doing certain projects is what, if we had got that opportunity, then things would have been a bit, there might be
like 5% or 10% improvement with the what we had at the end of the engineering course. So yeah, but what I figured, like once I started teaching, so students are not motivated. First of all, that's what I feel. They are motivated, but they are not rightly motivated. If I talk precisely, the reason I say this, सो हर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ करना, दे वांट टू बिकम समथिंग, दैट इज ट्रू, बट हाउ दे वांट टू डू इट, दे आर नॉट लाइक, उनको पता नहीं वो चीज़, एंड उनको ये भी नहीं पता कि वो क्या करना चाहते हैं. सो एज आई सेड कि मेरे को इंजीनियर बनना था, बट देयर इज अ जर्नी कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहता था, बट आई बिकेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर. सो वो जर्नी ऐसी हुई कि सो देयर वाज नो एक्सपोजर टू मी कि कंप्यूटर्स क्या होता है टिल माय 10th एंड 11th में. मुझे मैंने आईटी ले लिया जस्ट फॉर, जैसे सब ले रहे थे तो मैंने भी ले लिया आईटी. एंड आईटी 11th-12th में एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है, आईटी और कॉम्स, इधर ऑफ इट. तो वहाँ पे दे टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, दे टॉट टू थिंग्स, HTML एंड CSS, एंड अनदर वाज विजुअल बेसिक्स, आई गेस, इफ आई रिमेम्बर. कुछ नहीं समझा. मैं कोडिंग करता हूँ, आज डेली करता हूँ, बट तभी उस टाइम एक लाइन भी पल्ले नहीं पड़ रहा था. मेरे को तो लगता था कि लाइन में स्पेस दे दिया तो भी बाहर आउटपुट में स्पेस आ जाएगा, विच इज़ टोटली अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. तो बट हाँ, कि वहाँ से मेरा आईटी का इंट्रोडक्शन हुआ. एंड देन व्हेन आई वाज डिसाइडिंग फॉर इंजीनियरिंग, देन आई थॉट कि नहीं, अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं करना चाहिए, सीइंग द मार्केट सिचुएशंस एज वेल एज कि मैं शायद उतना अब पसंद नहीं कर रहा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को, एंड आई वांटेड समथिंग डिफरेंट. तो सोचा कि समथिंग व्हाट शुड बी द नेक्स्ट. तो मुझे आईटी लगा क्लोजेस्ट, बिकॉज आई डिड समथिंग जो मुझे नहीं समझ में आता बट लगा था कर लेंगे, तो इसलिए मैं गया. तो ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने वैसा सोचा नहीं था, बट विथ रिस्पेक्ट टू राइट मोटिवेशंस एंड राइट डिसीजंस एंड राइट इनपुट फ्रॉम द अदर्स, आप फिगर आउट कर सकते हो कि आपको क्या करना है. एंड वंस यू फिगर आउट कि आपको क्या करना है, तो आप उस पर काम करना चालू कर सकते हो. सो लोगों के पास गोल्स नहीं है, और उनको गोल सेट करने वाले सही से लोग भी नहीं हैं. दैट इज ऑल्सो द बिगेस्ट गैप विच वी हैव. Okay, there are few good people in the education sector, but those are not enough. Means बहुत कम लोग हैं. So it's all in all कि हमको अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो एक होलिस्टिक व्यू में लेकर चलना पड़ेगा. फ्यू सब्जेक्ट्स को चेंज करके हमारा, या ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज के साथ आके हमारा बात नहीं बनने वाला है. सो देर इज अनदर पर्सपेक्टिव टू दिस कि हम एक माइट भी, मेरा कुछ एक जस्ट एक थॉट प्रोसेस है ये. सो अगर कोई एजुकेशन सिस्टम चेंज करने बोलेगा तो मैं क्या बोलूँ उसमें, कुछ ऐसा मैं सोच नहीं सकता ना. आई एम नॉट दैट लाइक एट दैट लेवल, बट आई वुड सजेस्ट कि एक होलिस्टिक व्यू आना चाहिए कि हम हमारे टीचर्स को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, एंड अगर टीचर्स आगे जा रहे हैं तो हमारे स्टूडेंट्स भी आगे जाएंगे. दैट इज वन ये एक चीज़ मुझे नज़र आती है जहाँ पे लोगों को काम करना चाहिए. एंड स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स शुड नॉट एंटायरली डिपेंड ऑन कॉलेज. ये एक बहाना होता है. मतलब ये तो बचपन से सीखा हम लोग ने कि, एंड ये ट्रू भी है कि बचपन में ऐसा होता भी था कि एक मैथ्स का एक कंसेप्ट स्किप कर दिया टीचर ने, तो बच्चे लोग के पास बहाना होता था कि मैं, टीचर ने नहीं पढ़ाया, नहीं आता. एंड वो कुछ हद तक चलता भी है, बिकॉज आप उतने सारे कंसेप्ट्स के साथ आप डील नहीं कर रहे. देयर इज नॉट लॉट ऑफ डिपेंडेंसीज बिटवीन द सब्जेक्ट्स. ठीक है, वो बहाना अभी भी कंटिन्यू करते बच्चे विद व्हेन दे गेट इनटू ग्रेजुएशन एंड एवरीथिंग, कि ये कंसेप्ट नहीं पता है, अब ये चीज़ नहीं पता है, ये नहीं पता है, तो नहीं किया. दिस इज रियली रॉन्ग. आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर लेट्स टॉक अबाउट कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी और सॉफ्टवेयर एनीथिंग, अगर आपको टीचर कुछ बता रहा है, सो इट्स अप टू टीचर कि वो कितना बता पा रहा है. पहली बात तो, अगर वो एक बता रहा है तो उसकी भी एक लिमिटेशंस होती है, बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट इवन इफ यू टॉक अबाउट सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो इतना वास्ट होता है कि उसको कोई कवर नहीं कर सकता 100%. तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि आपके टीचर पूरा बता दे, दैट इज रियली रॉन्ग. आपको खुद से कितना कवर करना है वो आप डिसाइड करोगे. एंड दो पर्सपेक्टिव्स होते हैं इसमें. आपको कितना स्कोर करना है मार्क्स, वो हिसाब से आप थियोरेटिकल स्टडीज करते हो, लेकिन आपको कितना प्रैक्टिकल स्किल्स अचीव करने के लिए क्या स्टडीज करनी है,
वो एक अलग मैटर हो जाता है। और बच्चे लोग वहाँ पे फोकस नहीं करते, दे जस्ट फोकस ऑन स्कोरिंग द मार्क्स एंड दे डोंट डू लाइक स्किल्स एंड एवरीथिंग। इसका कुछ तो ट्रेनिंग नहीं करते वो लोग, एंड दे थिंक दैट कि जो कॉलेज में पढ़ाई होगा वही काफ़ी है। Yeah. So very rightly mentioned, जो self learning होना चाहिए. I think हाँ. that is what is missing, and that is what we are also promoting, and you are also suggesting the same way. Great talking to you so far, Tarun. I think let's take a quick detour and एक गेम खेलते हैं जहाँ पे मैं एक वर्ड बोलूंगी एंड जो आपके जहन में आता है with whether it's a word or a sentence or a person or a place, anything you can say that. Ready? Yeah, I can. Never had done this before. Okay, so अपन आज कर रहे हैं हम. Yeah, sure. So let's begin. Here we go. Code. Code. So right now it's for me. It's Kotlin. That's what I am doing. It is heavily influenced me right now. Okay, Virar. Virar. It's a Jivdani Mata Mandir. Teaching. Edva Academy. Future. It's a really tough. Let's say, become a good developer. That's it. Technology. Yeah, Java and Kotlin. Okay. Community. As in, I didn't get जैसे community अगर हम बात करें तो like what comes in your mind? Stack Overflow. Learning. Might be self-learning something. Okay. Success. Money. Raw engineering. Really great place. All right, that was great response, Tarun. And yeah, let's give a shout out to Tarun. I think जो भी हमारे यहाँ पे स्टूडियो में है, that was like really well done. Thank you so much, Tarun, for coming here on the podcast and sharing your knowledge. And I know that you are very, very proactively working on education, on learning methods, also helping students on, how to choose particular section, whether it is development, cloud and security, or data science, or even no code. So all that. So yeah, but any closing lines in terms of how you're planning and want to give guidance to young students and viewers that we are watching? Okay, so the common thing which I suggest to everyone is that first you figure out what you want to do. So कई बार होता है कि हमारे साथ, जैसे मैंने बोला था कि अभी IT इंजीनियरिंग मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर में बना, इट वाज लाइक सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन एंड सम सॉर्ट ऑफ लाइक हो गया. ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ सिर्फ होता है, एंड दैट इज वेयर कि उनको कुछ करना कुछ होता है, एंड दे गेट इनटू दिस इंजीनियरिंग एंड देन दे फील इट एज अ ट्रैप. फॉर दोज स्टूडेंट्स आई वुड सजेस्ट दैट कि आप पहले फिगर आउट करो कि क्या करना है आपको. कि सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज बिफोर यू स्टार्ट डूइंग एनीथिंग आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज माय गोल पोस्ट, एंड टू फिगर आउट गोल पोस्ट यू शुड डू द एनालिसिस कि मुझे क्या करना है. एंड इट कैन बी एनीथिंग. इट्स नॉट दैट आपको ये चीज़ नहीं सोचना है कि मैंने इंजीनियरिंग ले ली है तो मैं इंजीनियर ही बनूंगा. दैट इज नॉट नेसेसरी. देयर आर लॉट ऑफ फील्ड्स. अभी स्टूडेंट्स को, इनफैक्ट मुझे, आपको या किसी को भी, देयर इज नो 100% नॉलेज कि कितने तरीके के एक्सपर्टीज, कितने तरीके के स्किल्स, कितने तरीके के जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में. देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, तो इसमें उनको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि दे शुड हैव दैट नैक, वो कीड़ा होना चाहिए फिगर आउट करने के लिए उनको क्या करना है. ओके, दैट इज फर्स्ट थिंग. ये तो उनके लिए होगा जो इंजीनियरिंग में आ गए. अब वो उनके लिए जो इंजीनियरिंग में जिनको आना था और आ चुके हैं, तो आपको जो भी आपका कोर फील्ड है उसको फिगर आउट करिए. आप उसमें आप सिलेक्ट करिए. उसमें भी अभी देयर आर लॉट ऑफ सब डोमेन्स एंड सब फील्ड्स, तो आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि आप उसमें भी क्या करना चाहते हो. ओके, सो वो एक चीज़ रहेगा. जब आप फिगर आउट कर लेते देन यू डिफाइन दैट कि हाँ मुझे यहाँ पे रीच करना है. एंड वंस यू डिफाइन दैट कि मुझे यहाँ पे रीच करना है, तब आप उस पर काम करना चालू करोगे. तब आप एक एक चीज़ सीखोगे, एक एक चीज़ आपको समझ में आएंगी, और जैसे जैसे समझ में आएंगे वैसे वैसे आपको आपका
मतलब वो माइंड पुफ वाला सीन होता है ना, वो होते जाएगा धीरे धीरे। तो वो आपको वो लेवल पहुंचना है माइंड पुफ होने तक का, तो वो एक रहेगा। और आप वहां पे जब पहुंचोगे तब आप एक अच्छे पोजीशन पे रहोगे। एंड टू रीच दैट उसका भी एक तरीका होता है, यू शुड स्टार्ट लर्निंग, यू शुड स्टार्ट अप्लाइंग, यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो आप प्रैक्टिस से बच नहीं सकते, आपको प्रैक्टिस करना ही है। ओके। एंड आपको कंटिन्यूस नॉलेज गेन करना है, अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज। आप जो भी कर रहे हो सब पीछे रह जाओगे। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि आप आज जो पढ़ रहे हो कल यूजलेस हो जाती है। सो यू हैव टू बी अ कंटिन्यूस लर्नर। आई स्टिल स्टडी, मुझे भी टास्क मिलता है, प्रोजेक्ट मिलता है करने के लिए, एंड सर्टेन टाइम्स इट इज़ आउट ऑफ स्कोप जो मैंने अभी तक पढ़ा था, तो उस चीज़ को समझ के लेना पड़ता है। तो वो एक चीज़ है। तो यस, कंटिन्यूस लर्निंग, कंटिन्यूस प्रैक्टिसिंग, एंड कंटिन्यूस आस्किंग व्हाई, कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। ओके। कंटिन्यूसली फिगरिंग आउट, वो क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो वो जब तक वो आपको डिफाइन करेगा कि आप कहाँ पहुँच रहे हो, वो एक चीज़ है। Okay, that is a really practical and great Exactly. advice, Tarun. Thank you so much for being here. I'm very grateful that we are working together and we are connected to the same cause, that we are trying to do our bit in the educational ecosystem and right in Vasai Virar. So thank you so much, Tarun. Thank you for having me here. And to our listeners, we will be getting you more guests like Tarun, few with lot of experiences, few with youthful experiences. And stay tuned for the next episode of Socho or Siko Saga. Thank you. Bye bye.